Hello students, welcome back to my channel. Today we are continuing with the series of the cell. Now the next in the cell organelles. Today I am going to discuss you two important cell organelles, that is mitochondria and endoplasmic reticulum. First, mitochondria. As you know already, mitochondria are the respiratory sites of the cell. In mitochondria, respiration occurs. They are the sites of respiration. As you know, mitochondria first, it was seen by Fleming in 1882. Later, again it was observed by the scientist Kolliker in 1880. And later on, Altman finally, the scientist Altman in 1890, he discovered that these structures are present, observed in each and every cell, and they perform the particular function. Now, according to him, the mitochondria, they are the sites of respiration found in all the cells present, whether it's a plant cell or the animal cell. The shape and size, they are 5 to 10 micron in length and 0.5 to 0.1 micron in diameter. They are 0.5 to 0.10 micron in length and 0.5 to 10 micron in length and 0.5 to 0.1 in diameter. They are made up of, generally the substances of what they are made up of. Here 25 to 30% lipids are present, 5 to 7% they contain RNA, and 60 to 70% traces of DNA. Very small amount of the DNA in very traces. Means in very small amount, like in the traces, the organic salts, they are absorbed along with the water from the soil and move to the different parts in traces only. Same way DNA, it is found in the form of traces. So that is what about who discovered and the shape and size. Now this is a double membrane bound cell organelle, outer membrane and inner membrane. Inner membrane, it has very foldings present inside in this membrane only. This is only no. This is the inner membrane and this one is the outer, and it is this same single membrane. Sheet is there over there. Inner membrane, it has certain foldings. These foldings, they are known as cristae. As in the cristae, they had F1 particles present over there. Inside them, internal, a fluid is filled in them. It is known as matrix. During respiration, as you know, they are the sites of aerobic respiration where they take in oxygen and give out oxygen. जैसे आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन की साइट्स होती हैं. इनको सबसे पहले फ्लेमिंग ने 1882 में माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया गया. उसके बाद कॉलिकर ने भी 1880 में इनको देखा, लेकिन जब ऑल्टमैन में 1890 में देखा तो उन्होंने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया. ही फर्स्ट नेम एंड देन इट केम इनटू द रिकॉग्निशन. जब उन्होंने देखा इसमें जो इसकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोन लंबे होते हैं और 0.5 से 1 माइक्रोन जो होता है इनका डायमीटर होता है. ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व अंडर द टेल. जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये स्मॉलर स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए दिखाई देते हैं. ये दो वॉल के होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मॉल सराउंडिंग द सेल. इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक फोल्डिंग्स आर देयर. दीज फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जो होते हैं इनको हम क्रिस्टी कहते हैं. और क्रिस्टी के ऊपर ये राउंडेड रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. इस जो रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं या ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं. रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस. When we inhale oxygen, we take in oxygen, we give out carbon dioxide. That happens in your lungs. Now from the lungs through RBCs, it is carried out to each and every cell of your body. हम lungs में लेते हैं, lungs में हम blood में हमारे RBCs present होते हैं. RBCs से combine होकर ये ऑक्सीजन जो है हमारे हर सेल में जाती है. तभी कहते हैं योगा करें. योगा करने से क्या होता है, एक्सरसाइज करते हैं तो हम ब्रीथ ज़्यादा करते हैं. जब ब्रीथ करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है. तो जब ऑक्सीजन इनटेक, तो हर सेल में ऑक्सीजन जाती है
तभी हर सेल जब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. ऑक्सीजन, दैट इज aerobic respiration. When in presence of oxygen, glucose is decomposed into carbon dioxide and water with the release of energy in the form of ATP molecule. जब ऑक्सीजन लेते हैं तो जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन होता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं. और इन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसी के फॉस्फेट बॉन्ड्स में एनर्जी. As presently now I'm speaking, currently I'm not taking any food, so what happens, जो भी मेरी बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं, जब मैं बोल रही हूँ मैं, तो बोलने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आ रही. इस वक्त वही एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी रिलीज करते हैं. जिसे हम कोई काम करते हैं उसमें हमको एनर्जी चाहिए, या हम वॉक करते हैं, वॉक करने में जो हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी फॉर्म में स्टोर होती है. और अगर एटीपी फॉर्म में स्टोर नहीं होगी तो ग्लूकोज हमको एनर्जी नहीं दे सकता है. एनर्जी हमको ग्लूकोज से तभी मिलेगी जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा, तभी एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं. और एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में, जिसको कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं जब हम एनर्जेटिक हम अपने आप को तभी फील करते हैं जब हमारी बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों. और एटीपी मॉलिक्यूल्स बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कब होंगे, वो तब होंगे जब जितना ही ज़्यादा हम ऑक्सीजन लेंगे, जितने ही ज़्यादा हम ब्रीथ करेंगे. तो वो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में भी जब ऑक्सीजन जैसे रिलीज होती है तो जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है उसमें भी दो प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है फॉस्फोग्लिसराइड. तब फिर वो फॉस्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल जो होते हैं क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल जो होता है ये ऑक्सीजोम क्रिस्टल पार्टिकल में होता है. जब यहाँ से क्रेब्स साइकिल, तब क्रेब्स साइकिल की वजह से जब ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं. और जब ये होता है तब इसमें टोटल जो होते हैं हमारे 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं अलग अलग स्टेप से. ये लंबा चेन प्रोसेस होता है. दैट यू स्टडी इन योर हायर क्लासेस. वो आपको 11th-12th में होगा. हालांकि अब तो 11th-12th के भी सिलेबस से निकाल दिया गया. पहले ये 11th-12th के सिलेबस में क्रेब्स साइकिल डिटेल में था. पहले तो मैंने ये यूपी बोर्ड में क्लास 10th में भी पढ़ाया है क्रेब्स साइकिल, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में डिटेल में क्रेब्स साइकिल 9th-10th में है ही नहीं. Even in the 11th-12th also it is in short form only, it is not in detail. In the detail earlier it was there, I think now it is included in your medical studies. But here ये ऑक्सीडेशन होता है तो इसका दे आर द सेल. तो इसका मेन फंक्शन क्या है, दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाई दे आर नोन एज, बिकॉज दे रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. एटीपी मॉलिक्यूल्स के जरिए ये एनर्जी दैट इज adenosine triphosphate. ATP molecules, they are known as adenosine triphosphate. इसमें से जब ये फॉस्फेट बॉन्ड्स रिलीज होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में होगा तो एनर्जी रिलीज होगी. डाइफॉस्फेट से अगर नहीं है तो एडेसिन एएमपी में एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज होगा, तब इससे जो है एनर्जी रिलीज होती है. और इसका मेन फंक्शन है टू रिलीज द एनर्जी. द मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया दैट दे हेल्प इन द फॉर्मेशन प्लांट्स टू स्टोर द एनर्जी, टू एनालाइज द एनर्जी. मतलब हमारे जो डेली दैनिक कार्यक्रम जो हम लोग के डेली वर्कआउट होता है उसमें जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसमें जो मुझे एनर्जी लग रही है बोलने में, वो एनर्जी मुझे एटीपी मॉलिक्यूल्स के रिलीज होने से ही मिलती है. आई होप इट इज क्लियर. माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ वी to the next important, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, they are very important. They are distributed throughout the cell. They connect at the one side, they are connected with the cell membrane, and internally they are connected with the nuclear membrane also. First of all, they are observed by the American biologist in 1961. American biologist, cell biologist Porter has discovered this
in 1961, that is endoplasmic reticulum. These endoplasmic reticle, they are small tube like channel. जैसे आपका ये पतला, ये आपका स्केल है, इसी को ऐसे फोल्डिंग्स करके प्रेजेंट होता है. इनका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट. ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल है. एज सेल में जो जगह जगह, जैसे अगर ये है, अगर ये मेम्ब्रेन पर दे तो ये इसको स्टिफनेस प्रदान करेगा, स्टिफनेस होगी, ये इसको सपोर्ट करेगा. तो जो इंटरनल सपोर्ट साइटोप्लाज्म का होता है वो इन मेम्ब्रेन से मिलता है. ना ये एंडोप्लाज्मिक दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट वन, that is smooth endoplasmic reticulum, and the second one, that is the rough endoplasmic reticulum. स्मूथ बाहर की तरफ होते हैं, अधिकतर सेल के बाहर एरिया में होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक जो होते हैं वो सेल के अंदर न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होते हैं. इसमें क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक होते हैं स्ट्रक्चर सेम होता है, ये चैनल्स होते हैं, आप देख रहे हैं, ये सिंपल चैनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को लाने, मतलब लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. जो उसके ये कोलाइडल जो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस होता है ये साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करते हैं, जिसमें रफ में प्रोटीन मींस राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. राइबोसोम्स मींस दोस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, they basically present to the internal side and their main function is to transport, prepare और made, manufacture, मतलब उनको बनाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, राइबोसोम्स यानी कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का होता है. अच्छा, इसमें जो ये ट्यूबुल्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूबुल्स. वेसाइकल्स राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इसी से कट के जो राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं उनको वेसाइकल्स कहते हैं. सिस्टर्नी ये ब्रांच ट्यूबुल्स होते हैं, और ट्यूबुल्स ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको ट्यूबुल बोलते हैं, और जो ब्रांच्ड होते हैं वो सिस्टर्नी होते हैं, और जो राउंडेड होते हैं वो वेसाइकल्स होते हैं. ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं कब, कहाँ, कैसा फंक्शन इनको परफॉर्म करना है. ये जब एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, इधर आपके सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, इसके अलावा ये पूरे सेल में इधर उधर बिखरे भी होते हैं. They are distributed throughout the cell where they are present and the cell. और इनका फॉर्मेशन जो होता है, जैसे स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन है, लिपिड्स का फॉर्मेशन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फॉर्मेशन, तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी का सेल किस पार्ट ऑफ द बॉडी में है. जैसे मान लीजिए लिवर सेल्स में है, तो लिवर क्या डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके द्वारा होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है. ये जो होता है, जैसे हमारी बॉडी में है, जब प्रोटीन का जनरेशन होता है तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स चेंजेस इनटू अमोनिया. अमोनिया इज अ टॉक्सिक, अमोनिया जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है, हमारी बॉडी में ज्यादा देर नहीं रह सकता है, तो लिवर क्या करता है, अमोनिया का सूत्र में लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में चेंज कर देता है, यूरिक एसिड में. और यूरिक एसिड जो होता है तुरंत लिवर से ब्लड में जाके तुरंत पहले किडनी में फिल्टर होता है, पूरी बॉडी में नहीं सर्कुलेट होगा, वो हमारे लिवर से रीनल पोर्टर सिस्टम के जरिए तुरंत लिवर से पहले किडनी में जाएगा, उसके बाद ब्लड और कहीं जाए. लिवर से ब्लड हार्ट में नहीं जाएगा, पूरी बॉडी में नहीं जाएगा, लिवर से सेल्स निकल करके पूरा सीधे पहले किडनी में जाएंगे. और इसी तरह से जो हम फूड खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो डाइजेशन का जो फूड एब्जॉर्ब होता है तो इंटेस्टाइन से सारी वेन्स और कैपिलरी जो आर्टरीज होते हैं निकल के पहले सीधे लिवर में जाती है, जिससे कि एक्सेस ग्लूकोज लिवर में स्टोर होगा, और जितनी हमारा बॉडी को चाहिए उतना ब्लड में, क्योंकि एक्सेस लिवर शुगर पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम्स होगी. ठीक है, तो ये तीन तरह, तो इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये हार्मोन्स को, मान लीजिए ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में है तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करेंगे. अब स्टेरॉइड्स हैं, लिपिड्स हैं, लिवर में है तो डिटॉक्सिफिकेशन, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं. अब मान लीजिए जो इसके इंटेस्टाइन है, तो जैसे आपके ये सपोज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में है, पैंक्रियाज में है, तो ये क्या सिंथेसिस करेंगे एंजाइम्स का, हार्मोन्स का. और लिवर में स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेटाबॉलिक, मतलब लिवर में स्टोर करता है. अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में फूड स्टोर ग्लाइकोजन के, एनिमल्स में फूड स्टोर जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है,
जैसे प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल बॉडी में फूड जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, राइट। तो जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है तो उस ग्लाइकोन को पहले ग्लूकोज में चेंज करता है लीवर, और फिर ग्लूकोज ब्लड के साथ मिलकर हमारी बॉडी में ट्रांसलोकेट होता है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा तो लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करेगा और लीवर में स्टोर करेगा। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं एंड ट्रांसफर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, इंटरनल सपोर्ट, एज आई टोल्ड यू, mitochondria they are the sites of respiration. They are present in each and every cell. They were discovered by the biologist Altman in 1819. They are made up of two outer and inner membrane. Inner membrane has a folding known as cristae. Now this cristae, it contains oxysome particles that takes parts in the Krebs cycle, takes place here. Matrix glycolysis occurs over there. इसका साइज जो होता है 5 से 10 मिली माइक्रोन के होता है, डायमीटर 0.5 से 0.1 मिलीमीटर माइक्रोन ये चौड़े हो सकते हैं। और इनमें लिपिड्स जो ये जो बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो ड्रेस स्ट्रक्चर होता है 25 से 30% इसमें लिपिड होता है, 5 से 7% आरएनए होता है, और डीएनए जो 6% है ये ट्रेसेस के फॉर्म्स में होता है, डीएनए ट्रेसेस के फॉर्म्स में इसमें प्रेजेंट होता है। एंड मेन फंक्शन, they are known as powerhouse of the cell because they release the energy to perform various activities. दूसरा आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम they were first discovered by the American biologist Porter in 1960-61. They are of 3 types. ये सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपको वाटर देने के लिए ट्यूब्स होती है ना, तो वो ट्यूब है और ट्यूब की अलग अलग फोल्टेज है, कोई सीधी गई है, कोई ब्रांच्ड हो गई है, कोई राउंडेड हो गई है, कोई सेपरेट, ये डिपेंड करता है किस जगह कैसा फंक्शन इनको परफॉर्म करना है। स्मूथ होते हैं सिस्टर्नी वेसाइकल ट्यूबल्स, एज आई टोल्ड, सिस्टर्नी ब्रांच ट्यूबल्स, वेसाइकल राउंडेड वन ट्यूबल्स, ये जो सिंगल ट्यूबल्स होती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ये होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गए आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। जो रफ एंडोप्लाज्मिक दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इनमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ये सेल के अंदर भाग की तरफ अधिकतर पाई जाती हैं, और जो स्मूथ होती है वो सेल के बाहरी हिस्से में मिलती हैं, बाहर की तरफ पाई जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन्स ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, स्टेरॉइड्स का सिक्रेशन करती है, लिपिड्स करती है। लिपिड्स का सिक्रेशन जो होते हैं ये इनका बेसिस साइट्स ऑफ सिक्रेशन। डिटॉक्सिफाई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उनको डिटॉक्सिफाई मॉलिक्यूल्स करती हैं। दे सिंथेसाइज द हार्मोन्स एंड द एंजाइम्स and they also support and store various metabolic products, जो products होते हैं, और साइटोप्लाज्म के बहुत क्लोज होती है तो उस साइटोप्लाज्म को अंदर तरह से इंटरनल सपोर्ट भी प्रदान करती है, बिकॉज साइटोप्लाज्म दैट इज द कोलाइडल मैट्रिक्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल, दैट इज कॉल्ड द कोलाइडल मैट्रिक्स. आई होप इट इज क्लियर टू you. Any doubt you can ask me in the comment section. Now in the next video I'll meet you with the other important cell organelles of the cell which I have not explained yet.